سب سے پہلے تو آپ سب کی بڑی مہربانی کہ آپ نے یونانیمسلی ہمارے کاشف حنیف بھائی کو اور یاسر عرفات شر صاحب کو وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بنایا. اس کے ساتھ اگر میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ڈسپلنری کمیٹی کا ہے وہ بھی یونانیمسلی اگر کسی دوست کو ناراض نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں آنی جانی ہے. ایک دوست کو اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو ایڈجسٹ کر دیں. بھٹا صاحب کو سائیں کو بھی کریں کسی جگہ پر ریکویسٹ کر رہے ہیں. نہیں سو ہو گئی نا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک فورم ہے، رولز بن رہے ہیں سپریم کورٹ میں جس میں ججز اپائنٹمنٹ ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ان کا ریموول ہے. اس میں آپ سب سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اب آپ کی بار کونسل سے 2 نمائندے وہاں پر بیٹھیں گے. ایک تو قربان ملانو صاحب ہے اور ایک میں ایز اے لا منسٹر. تو آپ اس پر وہ ایک ہمارے پاس آیا ہوا ہے، رولز فائنلائز ہو رہے ہیں. اس میں مجھ سے لے لیں یا قربان صاحب سے وہ لے لیں، وہ ڈرافٹ آیا ہوا ہے. اس میں دیکھیں کہ اگر کہیں اور گنجائش ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک یونانیمسلی وہاں پر ہم نے، کیونکہ پہلے میں ممبر تھا وہاں پر جوڈیشل کمیشن میں، تو ہم نے وہاں پہ جو چیف جسٹس کے ساتھ جو ججز نامینیٹ کرنے تھے وہ بار کونسل کا نمائندہ اور چیف جسٹس نے کرنے تھے. ہم نے ایک وہاں پر ایک فرم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا تھا جس کی سب چاروں ہی بار کونسلز تھی. اور وہ ایک تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ایک ان پٹ دیں اور اس میں کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ جو آپ اتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے جو ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے یا جو بھی ہے، اور اب تو میں سرکاری نمائندہ ہوں تو اس لیے ذرا تھوڑا احتیاط سے بولنا پڑتا ہے، نہیں تو سب پکڑ کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ جو آپ نے اب یہ ہمارے بار کونسلز کا بڑا ایشو رہا ہے کہ اخراجات کا ایشو رہتا ہے، اور ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ پرابلم رہا ہے. تو میں نے کسی زمانے میں انہیں کہا تھا کہ اگر میں لا منسٹر بنا تو انشاءاللہ میں آپ کو ایبزارب کروں گا اپنے ایڈوکیٹ جنرل آفس میں. تو یہ ویسے بھی حصہ ان پرنسپل ہے تو حصہ ایڈوکیٹ جنرل آفس کا، کیونکہ چیئرمین جو ہوتا ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس بجٹ میں انشاءاللہ. دوسرا ہاسپٹل کا ایشو ہے اور کچھ ریزیڈنٹس جو ہماری ہاسٹل ہے، تو ایک پروپوزل آپ دیں مجھے، وہ ہم اس بجٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اسٹارٹ ہو جائے آفٹر جون. یہ 2 کام بڑے امپارٹنٹ ہیں اور کاموں سے ہٹ کر کے. اور وائس چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں انشورنس جو ہے اس کو کنٹینیو کریں، اور سمری میرے پاس آئی ہوئی ہے، وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں. اگر آپ چاہیں گے کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے، لیکن اس سے فائدہ میرے خیال میں اتنا کوئی خاص نہیں ہونا چاہیے. اس کو چینج کریں، فرم کو چینج کریں گے. فرم بالکل بات کرنے تھے، صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو میری آبزرویشن ہے جب میرے پاس وہ آئی فائل، کیونکہ مجھے بھی ایک کارڈ ملا تھا انشورنس والا. آپ بھی وہ کارڈ یوز کریں گے تو کیا مت سنیں نا، وہ کارڈ مجھے بھی ملا تھا. میں نے اس میں جب ہاسپٹلس دیکھے اور پھر مجھے جو ان پٹ ملا وکیل صاحبان سے، ان کو وہ انٹرٹین نہیں
कर रहे। सही बात, ये और बात वो ठीक है, पहले तो इनके खिलाफ करेंगे हम कार्रवाई, बिल्कुल ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी तो इसको हम भेज देंगे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कि पहले आप इसकी इंक्वायरी करें कि हमारे वकील साहिबान, ये मैं एज ए लॉ मिनिस्टर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये सर नहीं, ऐसा नहीं, इसको- ऐसा नहीं करें सर। इसको देखें वो प्रॉपर उसकी हम करें, ताकि गवर्नमेंट का पैसा है, अगर वकीलों की भलाई के लिए हमने दिया है तो वो गवर्नमेंट वकीलों की भलाई होनी हो, चाहिए। ना कि फ़र्द वाहिद की कोई भलाई हो। तो एक तो ये है, दूसरा कोई और तो नहीं रहा है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से मैं काफ़ी जगह पर और प्रेस में भी इसको लेकर लोग बैठे हुए हैं। मुझे तकरीबन 1.25 महीना हुआ है एज ए होम मिनिस्टर। मैं आप वकला बिरादरी के सामने इस चीज़ को ज़रूर रखूँगा कि जिस तरीके से यहाँ कराची के हालात थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक हफ़्ते से काफ़ी, अल्लाह करे खैर हो, कोई ऐसी स्ट्रीट क्राइम ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें कोई स्ट्रीट क्राइम हुआ हो और वो उसको मार भी दिया गया हो या किल, तो आज हुआ है। तो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी लाएं, SHOs के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रहे हैं, ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ भी तादीबी कार्रवाई कर रहे हैं। और उसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी यहाँ पर एक मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और मैं नहीं था उस मीटिंग में, लेकिन मेरे होम सेक्रेटरी साहब और IG साहब थे। और एक मेरी वीडियो को लेकर उसको मिसकंसेप्शन फैलाया गया कि मैं कोई खुदा न खासा ये चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर दुनिया जाए भाड़ में मैं रहूँ, खुश वाला किस्सा लेकर वो किसी ने चलाया उसको। तो मैं आप वकला बिरादरी ख़ास करके, क्योंकि हमारी बिरादरी है और हम वकील हैं, ह्यूमन राइट्स की पासदारी करते हैं और कानून की पासदारी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सिंध का और सिंध में खुशहाली हो और हमारे लोग खुशहाल हों। और कुछ लोगों ने इसको एक लैंग्विस्टिक भी रुख दिया। आप अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह आप लोगों के साथ चला हूँ या जो भी है, इसमें मैं कतई नहीं चाहता कि कोई लैंग्विस्टिक होनी चाहिए। कराची भी सिंध का हिस्सा है और सिंध रिच है और यहाँ पर हर किस्म की खुशहाली है। ये एक थोड़ा सा एस्पेक्ट आ गया है, उसको हम बेहतर करेंगे। और जहाँ मैं खुद अभी जैसे हमारे मेंबर ने नाराज़गी का इजहार किया, मसला ये है कि आपके पास इंशाल्लाह सब दोस्तों के पास आएंगे, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रही है कि हम जाकर में वहाँ पर मसाइल को पहले हल करें। और वो मसाइल घोटकी के इश्यूज़ हैं, कश्मीर में वाकई इशू है, शिकारपुर में बहुत इशू है। वाइस चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, उनके पास भी नहीं जा सका मैं, लेकिन मीटिंग्स वहाँ की। एक आप हमारे जरानी साहब बैठे हुए हैं, ये इसके विटनेस होंगे कि रोड नहीं चलते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम रोड चल रहे हैं। यकीनन वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। घोटकी का रोड का इशू था, घोटकी में रोड नहीं चल रहे थे जब मैंने चार्ज लिया। नेशनल हाईवे फर्स्ट क्लास चल रहा है, रात को 2 बजे मैं नेशनल हाईवे से गुजरा। और मोटरवे का इशू था, मैंने पंजाब के RPO से मीटिंग की, वहाँ DPO से मीटिंग की कि भाई आप अपनी तरफ कोई ऐसी अफवाह ना फैलाएं कि कोई खुदा न खास्ता मोटरवे को कोई बड़ा शदीद नुकसान है या ख़तरा है। क्योंकि असल में इशू ये है मोटरवे का कि वो बीच कच्चा एरिया से गुज़रता है, तो
उस पे हमने काफ़ी वर्क किया है। तो आपको बताने का मकसद ये था कि ये आप भी हमारे नुमाइंदे हैं और बीइंग ए होम मिनिस्टर ये फोरम हमारा अपना है, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है और आप ही हमारे सफ़ीर हैं कि हमारी बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हैदराबाद के दोस्त बैठे हुए हैं, हैदराबाद में भी काफ़ी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो कोशिश ये है कि हमारा और कोई भी दूसरा एजेंडा नहीं है। यकीनन लॉ एंड आर्डर हमारा फर्स्ट एजेंडा है कि लॉ एंड आर्डर बेहतर होगा, सिंध खुशहाल होगी और इंशाल्लाह आपको चेंज नज़र आएगी सिंध में लॉ एंड आर्डर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर मैं हामिद काश्मीरी साहब को मुबारकबाद दूंगा। उनके वालिद साहब हैं हनीफ साहब ने ये इनके लिए बड़े प्राउड की बात है कि उनके बेटे आज वाइस चेयरमैन हैं। हनीफ साहब हमारे मेंबर रहे हैं हमारे साथ। तो और सोसाइटी के हवाले से जो बात की हमारे दोस्त ने, आप प्लाट देख लें और कोई आइडेंटिफिकेशन दें हमें कि भाई ये यहाँ पर प्लॉट्स हैं, तो हम उसको एक्सपीडाइट करेंगे, आपको इंशाल्लाह देंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. We conclude this. टुनियो साहब से थोड़ा गाइडलाइन लेने लगे कैसे। Thank you very much. वहाँ पे